ગુજરાતી વાંચતા લખતા બધું આવડે છે. એ બહુ સારું છે આપણા મારવાડી છે પણ મુંબઈમાં રહેતા. હા, બહુ સારું છે આપણા માટે. લિંક છે, એ મોટા મોટી લિંક છે તમારે. ક્યારેક શિવમુનિને સમજાય નહીં તો પછી શ્રેષ્ઠ મુનિ એમને સમજાવે. હા, અને શિવમુનિ બહુ સરળતાથી સમજાવે છે, બહુ સરળતા. પછી કાલે તો હું અમને કહી દીધું છે લોકો સાહેબ, આપ આટલા સીધા છો, સરળ છો અને પાઠ ઉપર છો તો પાઠ ભગવાનની છે. આ તો સુધર્મા સ્વામી દીપવાદમાં છે, ખૂબ દીપવાદ. અને સુધર્મા સ્વામી જેવા આટલા સમર ગંધર હતા તો પણ એ જમ્મુ સ્વામીને કહે છે હું ભગવાનનું કહ્યું તમને કહું છું, મારું નથી પીરસતો, ભગવાનનું કહ્યું તમને કહું છું. આ સુધર્મા સ્વામી ત્યારે પાઠમાં એમને શું બોધ મૂક્યો કે પાઠ પર આવો તો પાઠ પર અમને આવી રીતે રહેજો, તમે તમારું પીરસવાના જ હતા. આટલું કહ્યું તો પાઠ ઉપર શું હાલત થઈ ગઈ? તો મારા સાહેબ એ આચાર્ય તો બોલી છે, અરે દંગ હો ગઈ, એ તો બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ. અરે क्या बोलोगे? इसलिए भगवान ने फरमाया था भगवान को द्वेष था किसी के पर, भगवान को हो सकता है द्वेष? क्या मैं दादा मैं आवाज पूछी दू और लाइटली તમે આમ વ્યાખ્યાનમાં પહોંચો કે મેં કહું થાય જ્ઞાન લીધું છે એમની પાસે જાઓ તો દાદાબાની વાત સુધી પહોંચો તો બધા વિરોધ નથી કરતા? તમને કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી? તમને શું કીધું કે અમારા આચાર્ય સૂત્રમાં એવું લખેલું છે કે તમને જેની પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય એનું નામ લોપાવવું નહીં. બહુ સ્પષ્ટ લખ્યું છે, બહુ સ્પષ્ટ લખ્યું છે. એમની પાસેથી જ્ઞાન મળ્યું છે એમને છૂપો નહીં રાખવા, એમને ખુલ્લા કરવા. જેનું બધું લખેલું પણ કોઈ એને કોણ સમજાય? આ જેનું મારું નથી, બધું જ છે. આચાર્યમાં તો બહુ સરસ છે. આચાર્ય તો મુખ્ય શું સાહેબ કોપીઓ મોકલાવી દીધી દીપેનજી આગળથી મોકલાવી દેવું એ સેન્ટર કે અમે આવીએ છીએ તેમાં રાખી મૂકો, આવીને આપણે ત્યાં ગોઠવણી કરીએ તો કહી દઈએ. એટલું કરવું પડે. તમારે કરવાની જરૂર નથી. એ અમદાવાદથી ડિસ્પેચિંગ થાય, ડિસ્પેચિંગમાં કમિટી કરી છે, એમાં શાહ સાહેબ ત્રણની કમિટી કરી છે તે તમારે આપણે બધું રિવ્યુ કરવાનું જુઓ જે હોય. જો કોઈને લાભ પ્રોગ્રામમાં થઈ તે કાલે એમને તેને બીજું એડજસ્ટ કરો પણ કરે તો બરોબર છે. આજે નહીં આવે કોઈ ખાસ તો નહીં આવે. આજે બધું પરીક્ષા છે, એક તો 12 વાગ્યા સુધી પેપર છે. આપણે જે વાત કરતા હતા ને સાની એટલે અમારો અનુભવ એટલે તમે જુઓ બેઝિક વસ્તુ કહું, તમને લાગે તમારી ભૂલો છે બધી, આ સમજી લો. તમે તમારું લાગેલું મૂકો બાજુએ, તમારી ભૂલો થાય છે બધી, એ છોડી દો. એટલે આ તારણ જે નીકળ્યું બહુ ખોટું છે આ વસ્તુ, મને લાગે તો. અમારા પર તો એટલાય ખુશ થાય પણ મને ખોદાડ્યું એવું ન લાગે. તું રાખો જ નહીં ને અંદર. મને લાખ ફૂલો ચડાવે શું થઈ ગયું? નહીં સમજ્યા? જે સિદ્ધાંત સિદ્ધાંત જ જોવો જોઈએ, બીજું ના ચાલે એમાં તો. એટલે સત સાધન મૂળ છે, તમે સમજી લેજો, એના પર જ છે, એના પર જ તમે ચાલી શકશો. નહીં તો તમારું કશું પાયો અજમજી જશે. તમને લાગશે એવું નહીં ચાલે લાંબુ. સમજી લેજો. બહુ જ સોલિડ કરવું હોય આ જ રસ્તો છે. અને આ વ્યવહાર માર્ગ આમ જ ચાલશે ને આ રીતે ને બહુ મોટો છે માર્ગ. ખરો તો એ જ છે, ખરું તો એ જ છે. વીર શાસન ચાલી રહ્યું છે, પ્રકાશવાનું આ રીતે જ છે. એ તો શું કહ્યું? આખો ક્રમને પ્રકાશમાં જ લાવવાનો છે પાછો, અને અક્રમ વિજ્ઞાનથી જ પ્રકાશમાં લાવવાનો છે. અક્રમ વિજ્ઞાનથી જ, એને સત્સાધનોથી. અક્રમ વિજ્ઞાન એ જ સત્સાધન એ જ અક્રમ વિજ્ઞાન છે. એમાંથી નીકળશે તમારું. હવે સમજ્યા? આ ખાસ કરજો. હવે તમે સિદ્ધાંત બરોબર પકડી લો. તમે સિદ્ધાંતમાં કાચા પડ્યા છો બધા. આ સમજો સિદ્ધાંતમાં ખાસ કરજો. પછી તમારી વિગતો ગમે તેટલી હશે ને ગમે તેટલું એ ચાલવા દો, એનો વાંધો નથી. કશામાં આપણા પણ તો હોય જ નહીં, કશું કોઈ જગ્યાએ ના હોય. આપણે ક્યાંય નથી.
કાંઈ નથી. અને બધાને એક જ તમારાથી એક જ વાત જરૂરી છે, આપણું મતલબ ને હેતુ ને આપણું જન્મ જ આપણો એના માટે બીજા માટે જ થયો છે. આપણે પોતા માટે આપણે માનીએ છીએ, ભૂલ થઈ ગઈ છે, આપણું જન્મ ગુમાવી દઈએ છીએ આપણે. બસ આ જ સમજાવતા જાઓ. આ અમે શીખ્યા અને અમે તમને કહીએ છીએ. પધારો પધારો પધારો. अरे आ तो फिर बैठ जाओ. पारसनाथ जी आए. अरे प्रॉब्लम बाजू में रखिए, अभी हम थोड़ी बात चालू करेंगे. ठीक है, हमको तो वही चाहिए, पहले तो वही चाहिए. हम तो ये अब कैसे जानना चाहेंगे जी कि आप निंद्रा से सुबह जाग गए थे कि नहीं? बिल्कुल जाग गए थे. आप जागे थे ना जी. और श्रीमती जी आप भी पक्का? और शुद्धात्मा सो रहे थे? जी, शुद्धात्मा सो रहे थे. शुद्ध आत्मा तो हर वक्त जागती है जी. तो अब बोले ना मैं जागता रहा था, शुद्धात्मा क्या करती है? इस वक्त तो शरीर ही बोल रहे हैं जी. तो ऐसा बोलना चाहिए ना आपको. मैं बोला तो आपसे बोलना चाहिए, व्यवहार से मैं जागा था, ऐसा बोलना जरूर थी. तो पहली आपकी आदत आ गई, नहीं जागा. टाइम लगेगा हमारा. अरे भाई साहब, आदत जूनी आदत, इसलिए तो आज्ञा दी है मैंने. श्रीमती जी समझी? हाँ जी, हाँ जी. मैं जागी ऐसा नहीं बोल सकते. श्रीमती जागी, हाँ जी. कैलाशनाथ जी जागे. हाँ. नहीं अभी समझे नहीं? जी जी जी. ये पूरा, अगर किसी के साथ समाज में जाओ, व्यवहार में जाओ, कहाँ भी जाओ, किसी के साथ बात करो, हाँ कैलाशनाथ ये ऐसा ऐसा है. आपको आप जो बोलते हैं वो कैलाशनाथ को भी ऐसा ही लगता है. तो वो सोचेगा ये क्या बोलता है, कैलाशनाथ को लगता है तो कैलाशनाथ वो खुद नहीं है, उसको ऐसा सोचेगा. और आप तो ये आपको प्रैक्टिस से ऐसा बोलने को चालू हो गया है. उनको मालूम नहीं है कैसे किस ढंग से बोलते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं, फिर कोई हरकत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा चकित हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, हरकत नहीं आएगी. कोई आपको मैड नहीं कहेगा, बोलेगा. बोले तो वो खुद में ऐड है तो बोले ना. बोलने से क्या फर्क पड़ता है. श्रीमती जी आप बोलेंगे सब में कि श्रीमती जी का है, श्रीमती जी श्रीमती, ऐसे ही बोलते रहो. घर में ऐसा बोलते हो, बाहर भी ऐसा करते रहो. क्या हरकत है? थर्ड पर्सन में सब वही व्यवहार, वो आज्ञा मैंने दी आपको, व्यवहार दृष्टि वाली. आप समझ गए, इसलिए आज्ञा देनी पड़ी मुझे. क्यों कि पूरा व्यवहार में आपको कहाँ भी ये शंका नहीं आएगी कि वो सारा व्यवहार में कहाँ भी मैं निश्चय स्वरूप हूँ. निश्चय स्वरूप मैना शुद्धात्मा स्वरूप, अर्थात मैं हूँ. मैं, आप समझे जी. मैं शुद्धात्मा की जगह मैं हूँ बोलना है, कैलाशनाथ की जगह नहीं बोल सकते आप. वो तो व्यवहार में बन गया. आप समझे कि नहीं? जी. तो बोलने की जरूर नहीं है, आज्ञा दी है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी ग्रो हो जाएगी. ये आखा जो बोया हुआ बीज खुला हो गया आज, तो सर्वप्रथम दिन. तो रात सोते हुए कैलाशनाथ जी सो गए थे ना, पारसनाथ सो गए थे. हाँ जी. और श्रीमती जी ने बिल्कुल कि शुद्धात्मा जी पक्का. हाँ, और सारी रात शुद्धात्मा जागते रहे और सुबह पारसनाथ जी जागे. शुद्धात्मा तो जागते ही है, और पारसनाथ जी जागे सही, लेकिन सब सारे जागे हैं. तो लेकिन पारसनाथ जी जागे, लेकिन व्यवस्थित शक्ति के अनुसार अभी सारा दिन में जो पारसनाथ जी की फाइल है वो सब, वो फाइल स्वरूप है. उनकी जो बाहर व्यवहार की फाइल आएगी रिलेटिव नंबर वाली, घर में और बाहर व्यवहार में, वो सभी बाहरों का संभाव निकाल करते रहेंगे व्यवस्थित शक्ति के अनुसार. ये हमारी अनुसार नहीं रहा, अभी हमारे अनुसार नहीं रहा, व्यवस्थित शक्ति के अनुसार रहा. अभी समझे? जी. नहीं तो उसमें क्या बनेगा? तो पारसनाथ की जो सारा दिन का व्यवहार बनता रहा है, उसमें आप करने वाले नहीं रहेंगे, और सारा जगत जागा है वो करने वाला रहेगा.
वो जागता है, वो बोलते हैं कि हम खुली आंख से कर रहे हैं, और आप खुली आंख से सो रहे हैं और शुद्धात्मा में जाग रहे हैं। आप समझे कि नहीं? और खुली आंख से सो रहे हैं, फिर भी आपका खुली आंख पर व्यवहार तो चल रहा है सारा दिन में, नहीं चल रहा है, लेकिन वो ज्ञानी की भाषा में सो रहे हैं, शुद्धात्मा की अपनी दो एक आज्ञा की भाषा में। आप समझ गए जी? क्योंकि आप व्यवस्थित शक्ति करता है, आप करने वाले नहीं है, नहीं। आप करता नहीं है, इसीलिए सो रहे हैं, कर्ता भाव में सो रहे हैं, समझे ना? कर्ता भाव में पारसनाथ करते हैं व्यवस्थित के अनुसार, और संभव से निकल कर रहे हैं। कहाँ विषमता नहीं बने, जो पसंद वाला है वहां पसंद में से उसके ऊपर राग न करे, ना पसंद लगा तो द्वेष न करे, बस खत्म हो गई बात। खाली उसके साथ जैसा है वैसा व्यवहार करके निपट ले, निकाल कर ले उसका। निकाल तो करना है फाइल का, करना है। कोई भी फाइल हो, आपके पास फाइल पड़ी है तो सब फाइल का सब निकाल कर लेता है। ऑफिस में भी ऐसा होता है, सब जगह होता है। और फाइल उसको बोलते हैं, अपने से अलग है वही फाइल बोलते हैं। बात हो गई? तो फाइल बोलते ही वो हम नहीं है, हम तो शुद्ध आत्मा अलग हो ही गए हैं, बोलो ना? बिल्कुल। तो फाइल शब्द कितना महत्व का है, जी। अब समझ में आया? कंप्यूटर में फाइलें खुलती हैं इसी तरह से। हाँ, और शुद्धात्मा का मेरा खाता मजे का। आप अब क्या बोलो, अभी क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो ये बता रहे थे कि हम लखनऊ में थे 3 साल, पुरानी बात होगी 20 साल पहले, थे तो 4 साल, लेकिन 3 साल हमने उनका वो क्या नाम है, परमिला जी का, उनका काफी दिन हमने ये सत्संग किया है, भगवान की बाणी। परमिला जी, परमिला भगवान वहाँ पे लखनऊ में क्या बोलते हैं? नीना जी, परमिला जी ने मास बस सुनना नहीं है। साध्वी जी, हाँ, अभी उस वक्त तो ऐसी थी। प्रमिला जी क्या साध्वी जी છે? प्रमिला जी हमने दादाजी वालों में साहब से स्थानकवासी जी? नहीं, यही दादा भगवान की ही बाणी बोलते थे बस। वो बराबर है। प्रमिला जी स्वाध्वी जी मिले होंगे, वहाँ कुछ होंगे। दिलावासी जी के है कि स्थानकवासी के? नहीं, जैन नहीं थे। जैन नहीं थे। जैन नहीं थे, सिंधी थे। सिंधी थे। बहुत सत्संग दादा भगवान का सत्संग ही करते दादा थे। भगवान का कई फंक्शन भी हुए, हर वक्त लगातार करते मुंबई से आते थे, थे। मीरा जी का सबका। ऐसी बात तो बहुत चल जाती है। हमने बहुत सुना है, हम आज दादा भगवान की बातें बाहर इतनी गई है, तो कोई भी अपने राइटिंग में सबने डाल देते हैं उनको, क्योंकि वो नई आई है आज लोगों के लिए, तो सबको काम में लगते हैं। तो उसके लिए सबको लगता है दादा भगवान कहा गया, थोड़ा सा करो, ऐसा लग सकता है। आप समझे? वो फुल्ली इन्वॉल्व थी इसी में, सिर्फ फुल्ली यही काम था उनका। ये तो देख मालूम पड़ेगा, तो बिना दृष्टि नहीं कुछ बनता है। क्या हो गया? कई प्रकार से, तो उसमें ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। दादा भगवान बिल्कुल अलग है शब्द, ये कहाँ नहीं मिलेगा आपको। दादा शब्द मिल सकता है कहीं कहीं ढंग से। नहीं, दादा भगवान का ही सत्संग वो 24 घंटे इसी में रखते जब हम थे वहाँ। अच्छा, तो वो बात करें बस। ये लोग अफ्रीका में गए थे, मैं 96 में अफ्रीका गया, नाइजीरिया, तो वही हमें बता रहे हैं। तो हम ईस्ट अफ्रीका में गए तो स्वामीनारायण के साधु लोग ये दादा भगवान की वो खुद बुलाते थे, ये उन्होंने मुझे बताया था। और उन्होंने दादा भगवान की वो सब सत्साधन रूपी कलमे वगैरह पुस्तिका छपा है, वो सबको देते थे। कहाँ से आई लिखा नहीं, लिखना चाहिए कि जैसे सच्चिदानंद संकी अनुविनाशी वगैरह कुछ तो मुझे बताया था। मैंने बोला उस साहब वहाँ सबके जो है उनको दिखाओ ना भाई, लेकिन पीछे सो गए। आपको मालूम है ऐसा क्या हुआ था? या बोलते हैं, इतना तो याद है। हाँ तो बोलते हैं, 9 कभी वगैरह सब कुछ। हाँ सब कुछ, मैं शुद्धात्मा सब कुछ दोस्त है। वहाँ तक बताया था मुख स्वामी, वहाँ तक मुझे बताया। अभी अपनी बात नहीं करनी, ऐसे हो सकती है, नहीं समझे?
हाँ, अभी समझ लो ना बात, समझे ना? हाँ, वो बन सकता है सब कुछ। दादा भगवान का आशीर्वाद से एक ही संघ है, जय सच्चिदानंद संघ। उनके आशीर्वाद से ये आजीवन ब्रह्मचारी ये सब है, ऐसे ही वो उनके खास वारसदार है। वारसदार महीना ऐसा वो अपना समाज में है ऐसा नहीं, लेकिन ज्ञान के लिए, आप समझे? मुझे वही सत्संग उनके निमित्त हो सकते हैं, समझे? और ज्ञान के लिए निमित्त वो हम है होते हैं। ये चल रहा है ऐसा व्यवहार। उनकी 1988 में वो देहांत हुई, 88 जनवरी में, तो उनके बाद ऐसा चल रहा है। और उनका ही आशीर्वाद से वहाँ सूरत में सबसे बड़ा केंद्र बना, वही एक हेड क्वार्टर है, समझे? उनकी जो अंतिम क्रिया हुई वो बड़ौदे में हुई। बड़ौदे से 10 किलोमीटर दूर एक दभोई करके जगह है, वो बड़ौदे से बाहर निकल के दभोई रास्ता जाता है, हाईवे से, एक्सप्रेस वे से, वही रास्ते पे ये है जगह। वहाँ उनकी समाधि बनी है और ऐसा ही सूरत का सर का छोटा सा मंदिर बना है, सारी वो तीर्थ बनी है, बस ये 2 जगह। लेकिन मूल जगह दादा के हज में बनी हुई खाली सूरत की है, एक ही है, बाकी इनके पीछे बनी हुई ये बात है। मुझे आप समझ लेना। ज़्यादा टाइम बॉम्बे में रहे, बड़ौदा, लेकिन सब जगह छूटे थे, सब जगह, सबसे बड़े सेंटर थे अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और मुंबई। 4 मुख्य केंद्र थे जहाँ दादा भगवान ज़्यादा रहते थे। बड़ौदा तो उनका था ही स्थान, लेकिन ये 3 जगह जाया करते, ऐसा बनता था। उसके अलावा पीछे जहाँ जहाँ बुलाते वहाँ भी जाते थे, प्रदेश में भी गए। ये नई नई बात है, मिलने के बाद सबको आश्चर्य लगता है, ये इन्होंने ऐसा हो सकता है। पारसनाथ जी समझे? जी श्रीमती जी समझो, ये बाजार है, बाजार में सब कुछ बनता है। आपको कहीं कहीं तरीके के रत्न मिलेंगे और इतना अमूल्य हीरा आपके हाथ में आया है, रत्न इतने आएंगे, उससे भी चमत्कार दिखाई पड़ेगा और वो उसके लिए आपको ऐसा ऐसा करेंगे और आप चमकावा में आ जाएंगे वहाँ। अरे ये क्या है, क्या बात करते हैं? तो बोलते वो समझ जाएंगे कि ये साहब के पास कुछ हो, कि अगर आपके पास हो तो उसके बदले में इतना कीमती दे देते हैं। तो कैसा? तो आपका हीरा सब कंपेयर करते हैं तो ये तो इतना चमकदार दिखता नहीं है, वो चमकदार है। अरे 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 देखो है ना चमकदार मेरा, अगर चाहिए तो ले लो, जाओ रख के लेके रख के जाओ, ले जाओ, ले जाते हैं, जाओ। पारसनाथ जी करेंगे ऐसा? बोलो ना कर देना। श्रीमती जी करेगी? चमकदार तो बहुत मिलते हैं। सोना, असल सोना चमकदार नहीं होता है, और लेकिन वो गिलिट चढ़ाया हुआ रोल गोल्ड बहुत चमकदार होता है जी। तो बिल्कुल चमकदार की वैल्यू ज्यादा के बिन चमकदार की? सही कीमत है जी। सही किसको? आप तो पारसनाथ जी है पक्के, और श्रीमती जी है पक्की। हाँ पक्के। हाँ, तो श्रीमती जी बड़ा नाम था और पारसनाथ जी भी बड़ा नाम है, दोनों बड़ा नाम है। श्रीमती जी का तो सती जी का नाम था। हाँ जी, बड़ों ने दिया, माँ बाप ने दिया तो हमारे ने ले लिया, हमको आगे बच्चे कितने?
3 बच्चे हैं। कहाँ है? पंचकुला में। पंचकुला में क्या क्या करते? कोई भी भारतीय किसी भी धर्म का हो, लेकिन ये उनका अपनाना है, वो होना ही है उनके लिए। पीछे वो जो धर्म का हो है पीछे, बिल्कुल पहला वो सर्वप्रथम भारतीय है, खत्म बात है। इसीलिए ये मंत्र है, ये मंदिर की भावना है, समझे जी। ये बताइए भाई, नमकार मंत्र के साथ साथ है ये वासुदेवाय नमः और शिवाय नमः। समझो तो कल बताया समझाओ भारत जी। मैं समझ गया जी। मैंने कल मैं बता ही देता हूँ उसको। कल हमने आपके प्रवचन में सुना था ये कि ये तीनों को करने से कोई भी देवी देवता अपने नाराज नहीं होंगे, सब रहेंगे, सब रहेंगे। तो अपना कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा और बिल्कुल स्मूथ अपना मुक्ति मार्ग चलता रहेगा। हम आसानी से मुक्ति मार्ग पर ये और दूसरों को भी हम काम के करेंगे जी। हम हमारे लिए काम के ऐसा नहीं, दूसरों के लिए काम करेंगे, समझे? और मनुष्य का मतलब ही यही है कि दूसरों को काम में आना। बिल्कुल हमारे खुद के नहीं ना खुद के लिए नहीं बस है। बस आपका पास है ना पुस्तिका कि ये आपको हमारे पास आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ भाइयों, दोनों में ये ज्ञान के बारे में सही जागृति नहीं लाने की जरूरत थोड़ी है। लाने की नहीं, ऐसा नहीं बता, लाने की जरूर है। सही बोलता हूँ मैं। हाँ, डेप्थ नहीं है, ये बोलता हूँ मैं। डेप्थ नहीं है, डेप्थ ज्यादा जरूर नहीं है, लेकिन हमारी जीवन खाली बेकार चली जाती है, वो नहीं चली जाए। ये अपना मकसद जीवन का सही बनी रहे, इतना तो समझ लो। और पंजाब का तो बहुत महत्व का स्थल है, ये तो भारत की हेड है। यहाँ पर 100-200 साल से हमेशा मुसलमानों की वजह से डिस्टरबेंस रहा है। 100-200 साल माटी पटा नहीं, हमेशा 100-200 साल से नहीं, उसके भी ज्यादा। और यही रीजन है। और उसके आगे कहीं काल से सारी संस्कृति यहाँ से ही बढ़ी है। संस्कृति का उद्गम स्थान ही यहाँ है पूरा। फिर भी पीछे बहुत तकलीफ आ गई, दूसरी असरों बहुत आ गई, बहुत असर में आ गई। वो असर के अंदर ये ज्ञान का प्रभाव और अपनी संस्कृति का प्रभाव में थोड़े कवरिंग आ गई है, सब बहुत कवरिंग। जैसे बादल आ जाते हैं सूर्य के प्रकाश पर, ऐसा आ गया है। तो वो थोड़ा एक करनी जरूर है, समझे ना? तो ये उससे बनेगा तो आप दोनों इंस्ट्रूमेंट बनना, जो बन सके हो। हाँ, समाज में जहर में जो हो सके हो, हमें जबरदस्ती से किसको करना नहीं है। ये तो वैसे ये तो रुचि है, वैसे रुचि जरूर है। एक कुकुला में जाके आए साहब, ये उत्तम भाई साहब जी, ही इज वेरी सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े अच्छे। अहमदाबाद में स्टेनलेस स्टील में बिलेट्स बनाते हैं। अच्छा है, लेकिन ये संघ वाले और ट्रस्ट बनाया है तो वो लोग संभाल लेते हैं। तो आपका जय सच्चिदानंद संघ उसमें, तो ये पंचम काल में जो जैन समाज में, जैन दर्शन में सभी को बताया गया कि मोक्ष नहीं है, ये वगैरह नहीं है, ये सब है, सब है, ये तो खाली पाप नहीं करो, पुण्य करो, बस खत्म हो गई बात, करते रहो। ऐसा करके शैलों ने इस पर आ गया वितराग मार्ग। महावीर भगवान की सारी विज्ञान जो है और उनकी आज्ञा जो है, इतनी शैलो डेप्थ पर आ गई, बहुत शैलो। तो क्रिया के मार्ग पर भी उसका क्रिया का भी डेप्थ उसमें नहीं रही, बाह्य क्रिया में भी डेप्थ नहीं रही, खाली ऊपर की दिखावा तो नहीं बोल सकते हैं, फिर भी ऊपर की सारी तपस्या की क्रियाएं बनती रही। ऊपर की सारे साल भर में सब लोग कहीं ढंग से करते रहते हैं और चातुर्मास में करते हैं और सब आता ही है सब क्रियाएं में। पर्यवेक्षण में तो खास करके करते हैं।
ये बनती रहती है, लेकिन उससे ऊपर से बनी रहती है। उसमें जो जरूर है खाली क्रियाओं में भी वो भी नहीं रही आज तो। वो आज्ञा धर्म से थी सर, वो नहीं रही। और समझो, ये आज वीर शासन चालू है, नहीं रही। उसका कारण है तो भस्म ग्रह का उनकी असर थी, वो असर के अंदर सारा वीर शासन और धर्म का प्रभाव और माय भगवान का यश नाम कर्म इतना प्रखर यश नाम कर्म जो 21,000 साल चलने वाला है, आप जानते हैं। फिर भी वो 2500 साल तक वो डंका हुआ रहा, जैसा बादलों में सूर्य डंका रहे, इस ढंग से रहा। किस कारण? वो ग्रह की नेगेटिव इफेक्ट में डंका रहा, और उसकी पावरफुल नेगेटिव इफेक्ट ये भारतवर्ष में बनी। अच्छा, और सभी जगह ये धर्म, और खास करके जैन धर्म को ऐसा ही रहा, और सभी धर्म को असर आ गया। तो माय भगवान के पश्चात 150 ईयर्स और इतना ही रहा, 120 ज्यादा नहीं चला है। उसके बाद ऐसा ही होगा, इनडायरेक्ट होके परंपरा से पाठ पर भी ऐसा ही आता है, समझे। तो 2500 साल के अवधि में कोई ऐसे बड़े पुरुष हुए ही नहीं, फक्त 2 हुए। 2000 साल के आगे आचार्य कुलकुंदा जी हुए, कुलकुंदाचार्य। कौन? 2000 साल कुलकुंदाचार्य, सुना है ना? वो साउथ इंडिया में हुए, और वो दिगंबर संप्रदाय में थे, साउथ इंडिया में। कुलकुंदाचार्य, उनका नाम दूसरा पद्मानंदी मुनि भी था, कई नाम थे, कई नाम थे, लेकिन पद्मानंदी और कुलकुंदाचार्य प्रख्यात नाम। तो उन्हों से उसी समय ये सारा जो बाकी का जो था थोड़ा सा भी, वो भद्रबहुल स्वामी के बाद जो थोड़ा रहा था वो भी सब आच्छादित हो गया, डंका गया सब। और बहुत ऐसी अंधेरे में जैसी परिस्थिति बने, ऐसी धर्म की परिस्थिति बन गई। सब लोग एक दूसरे से टकराते रही से ये हालत बनी। और उस समय ये आचार्य हुए, उनकी ज्ञान दिखी, तो उनकी तपस्या में ये सारा एक ज्ञान खुला हुआ, और उनकी अनुभव ज्ञान में ये सारा ज्ञान का प्रकाश खुला होते ही ये अंधेरे की टकराव वाली परिस्थिति में उनको प्रकाश सबको मिले, और वीर शासन का कुछ सही ढंग का रहे, इसी उनके माध्यम से खुली हो गई। तो थोड़े शास्त्र उनसे मिले। अपने सारा जैन समाज में आज जो शास्त्र है उनके हैं। कौन तो आप जानते नहीं? ये तो यहाँ पंजाब में ये बात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। वैसे शास्त्र का ज्ञान है यहाँ, नहीं है नहीं। आत्माराम जी वगैरह ने बहुत कुछ लिखा है, पुष्कर लिखा है। हम लास्ट टाइम आए थे, हमें उनका मिला था ग्रंथ, और कुपकुला से मिला था। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन है वो गए हैं जी, लेकिन वो दूसरे आचार्य के हैं, आगे के पहले समझो कि तत्वार्थ सूत्र वगैरह वगैरह, अब समझे ना। समय सार के भी है, नियम सार के है, नहीं है ऐसा नहीं है, है तो सही। और आचार्य शिवमुनि जी ने काफी अभ्यास किया है, खूब अभ्यास किया है, खूब अभ्यास किया है। फिर भी कितने सरल है, आपने देखा, बच्चे सर के हैं, तो ऐसे आचार्य की ये गरिमा होगी। तो ये हुए। उनके पश्चात आज करीब 300 साल के आगे दिगंबर नहीं, श्वेतांबर संप्रदाय में नहीं, आचार्य अभिमन्यु जी वहाँ श्वेतांबर में, कौन नहीं, श्वेतांबर स्थानकवासी नहीं, श्वेतांबर ही थे, पाटन से पूर्व जो वो श्वेतांबर संप्रदाय में आचार्य आनंदगंज जी बोलते हैं, आनंद ऋषि जी की बात कर रहे हैं, आनंदगंज जी। अच्छा, वो उधर 300 साल जी, 300 साल
पधारो। अरे आप पधारो, डॉक्टर आ गए। सर्वप्रथम हम सब भारतीय हैं नहीं? वो मिलती है, वो तो लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी लेके आए थे। कहाँ से हमारे लिए कहाँ मिले? तो ये आए हैं, देखो ये उन्होंने यहाँ से सब ढूंढ के निकाली। तो दादा भगवान की जो उनके मुंह से निकली हुई वो उन्होंने इकट्ठी की और सारी सूत्र के रूप में दे दी है। कुछ 2000 है, कुछ 2000 होगी नहीं? हाँ, 1598 1700 है, 1600 इसी उसमें है सूत्र रूप में। आप समझे? बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे। अपनी जीवन की हर एक पहलू को मजा आती है उसमें समझने के लिए। तो उसमें से ये पुस्तक जहां जहां गई है उत्तर भारत में, ये चंडीगढ़ वहां से पंजाब से लेके राजस्थान तक सभी जगह पहुंच गई है। कम से कम 100,000 लाख ऊपर कॉपियां चली गई होगी, राइट? ये वो भाई के साहब के फैमिली के साथ उनके लघु बंधु है। दादा भगवान ने फरमाया विद्या बिकी नहीं जाती। क्या फरमाया? बिकी जाती है नहीं विद्या। बाकी सब बिकाऊ माल है, लेकिन विद्या बिकाऊ माल नहीं है। क्या? बिल्कुल, विद्या बिकाऊ माल नहीं है। हाँ, जहां तक विद्या बिकती नहीं वहां तब कहां तक वो टिकेगी? जिसके पास विद्या है वो जितनी बिकाएगी इतनी वो उनके पास से चली जाएगी। वो नेचुरल लॉ है। क्या बताया? वहां सुप्रीम कोर्ट का लॉ नहीं चलता। अब समझे? सुप्रीम कोर्ट गए तो भी कुछ नहीं चलेगा साहब, पारदार जी, कुछ नहीं चलेगा। वो नेचुरल, और नेचुरल लॉ वाली कोर्ट है, वहां किसी की नहीं चलती। चलती? सुनते नहीं? बोलो ना, नहीं चलती। यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, चरणों में बैठता हूँ। अब और भी नजदीक आ जाओ। ठीक है, एक थोड़ा ऊंचा चलता है इस कारण। नेचुरल न्यायालय में किसी की चलती है? न्यायालय के अंदर, कुदरत की न्यायालय में, कुदरत की न्यायालय में किसकी चलती है? उसमें तो उसी की, भगवान की चलेगी। भगवान की भी नहीं, किसी की भी नहीं, किसी की नहीं चलती नहीं उसकी। हाँ, जो उनके लॉस को फॉलो करे उनकी चलेगी, उनके लॉस को फॉलो न करे उनकी नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सही बात। अरे वो तो तो उसमें क्या दिक्कत है समझने में? उसमें कॉलेज में जाना पड़ेगा सीखने के लिए, सरदार जी, यूनिवर्सिटी में। तो बच्चा भी समझ पाता है? नहीं समझ पाता है। कुदरत क्या है? कुदरत हम है। क्या है? कुदरत हम है और हम कुदरत है। अच्छा, हाँ, ये कुदरत का ही हिस्सा है, हम उनका ही बना हुआ है सब, कुदरत के रचे हुए सब पहलू है। क्या? कुदरत के नचाए हुए हम नाचते हैं। ठीक है। जैसे हमारे नचाए हुए सब पपेट्स नाचते हैं ना जी, पपेट्स। हाँ जी। क्या? पपेट्स कुदरत न, पपेट्स हमारे नचाए हुए। अच्छा, कठपुतलियां, कठपुतलियां हाँ जी, नाचती है ना। अच्छा जी, ऊपर से मैं नचवाऊं तो हाँ जी, देखिए आपने हाँ जी, रामलीला। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। हाँ? वो तो मनुष्य की बनाई हुई, मनुष्य नचवाता है। और मनुष्य को कौन नचवाता है? कुदरत। तो कुदरत अपने आप से नहीं नचवाती, लेकिन मनुष्य को अपना हिसाब जुटा हुआ है वहां। वो जुटा हुआ हिसाब से मनुष्य कुदरत से द्वारा मार्फत नाचा जाता है। अभी समझे आप? और उनका एक ही कायदा है। क्या बताया?
एक ही कायदा सबके लिए, सबके लिए। हाँ, एक ही कायदे से सबको चलाती है, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को अन्याय नहीं। सरदार जी ठीक है? वो कायदा क्या है जानना है? कायदा बता दूं? आपसे पूछेंगे और किस? अरे भाई साहब आपको ही मालूम है। बता दो सरदार जी। जरूर, सबको जानना है आप लोगों को। वो कायदा दादा भगवान ने खुला किया। दादा भगवान एक काल में, कली काल में, कलयुग में दादा भगवान अभी अभी हो गए ताजे, कलयुग में कल के अवतार हो गए, अभी आके चल गए हो तो देह तो नहीं है, लेकिन उन्होंने खुला किया वो कायदा मनुष्य की कल्याण का खातिर कि मनुष्य ये सब ऐसे कैसी परिस्थिति में आ गए हैं, तो अंदर से दुखी दुखी हो गए हैं, उनके लिए कुछ रास्ता निकले, कुछ उजाला उसको हुए उनके जीवन में, उसके लिए कायदा खुला किया। जानना है? मुफ्त में दिखा दो, दिखा कर दो कृपा। अच्छा जाओ बता देता हूँ, कर दो कृपा। दादा भगवान ने फरमाया ये कायदा एक ही है। उनको इंग्लिश में बताया दादा ने, जो मैट्रिक फेल थे, मैट्रिक पास नहीं थे, फिर भी कायदा इंग्लिश में निकाला उन्होंने, और वही है कौन सा? नो लॉ। कौन सा? बोलो। उनके लिए जो मैट्रिक फेल हैं, पास नहीं है, वो कायदा कुदरत का कायदा उनके लिए निकाला ना, उनके लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए एक ही कायदा है। अच्छा, नो लॉ। क्या बताया? नो लॉ के बीच में आधी लाइन है, छोटी सी, एक ही शब्द है। नो लॉ एक शब्द है, नो लॉ वो कायदा है। उसका अर्थ क्या है? बेकायदा कायदा। नो लॉ इज द लॉ। बेकायदा वो कायदा है। क्या बताया? बेकायदा वो कायदा है। बोलो ना, बेकायदा बोलते, बेकायदा म्हणजे जो कायदा नहीं है वो कायदा है। बेकायदा म्हणजे क्या? कायदा बिना का कायदा। कायदा बिना का कायदा। हाँ, नहीं सब हिंदी में नहीं बोलते। नहीं समझ गए? नहीं, बेकायदा बेकायदा कायदा बेकायदा है कायदा नहीं, बेकायदा उसको ही कायदा बोलते हैं। जहां कायदा होता ही नहीं उसको ही कायदा बोलते हैं। अभी समझ में आया कि नहीं? एक बच्चे को कायदा होते हैं, हाँ। छोटे बालक को बोलो नहीं, कायदा देते हैं बालक। तो कोर्ट क्यों उसको रिहा कर देती है? कोर्ट उसको रिहा क्यों कर देती है? बोलो सरदार जी, बोलो। हाँ बोलो ना, बच्चे को नाबालिग है, पुख्त तो नहीं है, नाबालिग है, उस हिसाब से रिहा कर देते उसको कायदा का मालूम नहीं है, तो जो कायदा का मालूम नहीं वही कायदा है उनके, तो कायदा बराबर समझता है। और बड़े कायदा समझने वाले कायदा नहीं जानते, कुदरत का कायदा गुम होते। तो सब कुछ मिल गया, तो पीछे अंधेरा ही होगा जीवन में, क्या करेगा? बस ढूंढ लिया, उजाला हो गया उसके अंदर। चलो एक पुस्तक, अच्छा, उसमें से इस स्वपर प्रकाशक में से ये पुस्तक गया उसके पास, केंद्रीय जेल भोपाल में। कहा गया? सेंट्रल जेल भोपाल। समझे? जीवन को नई दिशा, वो पत्र के ऊपर उन्होंने लिखा है, लिखने वाले ने, कैदी ने। आप समझे क्या लिखा है? जीवन को नई दिशा। वो लिखना, उसने पुस्तक पढ़ के लिखा, जीवन को नई दिशा। हाँ, जीवन प्रकाश मिला कि कुदरत के कायदे मिले उसको। अच्छा,
माननीय शाहजी उनको वो लिखते हैं, वो उधर शाहजी का नाम है ना जी। आप जय सच्चिदानंद संघ के समस्त अनुयायियों को अजीत दुबे का प्रणाम स्वीकृत हो। 13 दिसंबर 2002 का पत्र है। मैं यहां केंद्रीय नवीन जेल में आजीवन कारावास का बंदी हूं। सुनते हैं? विगत माह में मुझे मेरे एक मित्र द्वारा भेंट की गई पुस्तक स्वपर प्रकाशक विज्ञान का अध्ययन किया। एक मित्र के द्वारा भेंट की गई, देखो वो जेल के अंदर चली गई, देखो उसका भाग्य। वास्तव में ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का दर्शन, चिंतन एवं सहज प्राकृतिक उपमाओं में भरे जीवन को एक नई दिशा दी है, जिससे मैं अति अधिक प्रभावित हुआ एवं अपने ही अंदर उन खामियों की खोज एवं भविष्य में उन खामियों का किस प्रकार पॉजिटिव युग करना है, इस दिशा में ज्ञानी पुरुष द्वारा सुझाए गए उपायों द्वारा आशा है आप अपने ज्ञान सागर से कुछ बूंदे अवश्य प्रदान करेंगे। अच्छा। भवदीय अजीत दुबे सन ऑफ श्री ब्रुजलाल बंदी, बैरक नंबर 10, केंद्रीय नवीन जेल, कृष्णनगर, बाईपास रोड, भोपाल। सुंदर पत्र। हाँ, ये 13 दिसंबर 2002 का पत्र है। आप समझे? एक पुस्तक पढ़ने के बाद उसके पश्चात ये पाना निकल गया, आ गया। वही है। हाँ, अच्छा। हाँ, देखिए उसके पश्चात 8 वो कौन सा 2002 दिसंबर 13 दिसंबर थी। हाँ। तो 8 दिसंबर 2002 कैसे आ गया? ये तारीख 20/9/2004 को जी, वो 2002 20/9/2004। देखो, हाँ, अजीत दुबे वही लिखता है। परम आदरणीय विनम्र करुणाशित आप्तपुत्र श्री जयमेश शाहजी, बहन मृदुला जी, शशि जी, पुष्पा जी सहित समस्त जय सच्चिदानंद संघ के सदस्यों को अजीत दुबे की ओर से हृदय से मन से सादर प्रणाम। ये पुस्तक तैयार करने में जिनका सहयोग आया था वो सब बहनों का नाम वो प्रस्तावना वगैरह में लिखा है उनके साथ। जी जी। हाँ, बड़ा अच्छा बना है। तो उसने कितनी गहराई से पढ़ा है वो समझना जरूर है। सब कुछ पढ़ा है उसने, उससे निर्देश मिलता है। सब कुछ पढ़ा है। मुझसे आप सभी से प्रगट में, अप्रगट में, ज्ञात में, अज्ञात में, सोच से, विचारों से, अन्य किसी भी प्रकार से यदि कोई भूल चूक या त्रुटि हुई है तो आप सभी स्नेही जन एवं दादा भगवान मुझे क्षमा करे। अच्छी बात है, क्षमा याचना अच्छी बात है, मांग ली अगर कोई त्रुटि होगी। मेरा वर्तमान दादा भगवान के सत्य एवं सद्वचन एवं आपके सद्प्रयास से कारागार में बिना किसी राग द्वेष एवं कष्ट रहित व्यतीत हो रहा है। परसदास जी, स्वसंजीवनी ये पुस्तक जी और स्वपर प्रकाशक विज्ञान की दादा भगवान की वाणी
न सिर्फ मेरे लिए सदमार्ग का निर्देश बनी, बल्कि अन्य कोई कैदी भाई भी इन विचारों से निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं और मुझ पर निरंतर दबाव बनाते रहते हैं कि श्री शाह जी से अनुरोध कर दादा भगवान के विचारों, उनके मार्गदर्शन पर आधारित अन्य जो भी साहित्य प्रकाशित हुआ हो तो वह मंगवा ले। दूसरे कैदियों, परम आदरणीय आपसे करुण निवेदन है, परम आदरणीय आपसे करुण निवेदन है कि हम बंदियों पर पूर्व की भांति आपका स्नेह बना रहेगा एवं इसी परिप्रेक्ष्य में संघ परिवार हमें दादा भगवान के दर्शनों पर आधारित पठनीय सामग्री अवश्य भेजेंगे। आपको सूचित करते हुए हमें अति अधिक हर्ष एवं गौरव हो रहा है कि हमारी केंद्रीय जेल को विश्व की प्रथम ISO 9000 2001 के प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया है। मैंने दादा भगवान की प्रेरणा से जेल से राष्ट्रीयता की भावना से लोगों को प्रेरित करने के हेतु एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है, जिसके अंतर्गत में प्रत्येक पत्र की प्रथम पंक्ति पर सर्वप्रथम हम भारतीय है उद्घृत करता हूं। सुनते हैं? मुझे आशा है मेरे इस प्रयास को आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। है आशीर्वाद आपका, सदा जी आपका, सबका जरूर पक्का आपका चाहिए आशीर्वाद, तो हमको हम तो सीखे उनसे। बिल्कुल ठीक है। पुनः आप समस्त विद्वजनों से करबद्ध क्षमा सहित, करबद्ध बोलता है, और क्षमा सहित दादा भगवान के आशीर्वचन एवं आशीर्वाद का लालाचित समझे ना? अजित दुबे आपको आपके प्रयासों को प्रणाम करता है। लालाचितपना कितना अच्छा है। संसार में सब जगह सभी चीजों का लालाचितपना रहता है, लेकिन इसका तो किसी को बनता ही नहीं। सरदार जी, ये तो अच्छी बात हो गई। जेल में अजित दुबे बंदी, पाई क्रमांक 10 केंद्रीय कारागार कृष्णनगर भोपाल वगैरह वगैरह। देखो इसका अनुभव आ गया, इसीलिए 2 पत्र पढ़े मैंने आपने के लिए। ये आपका ही पुस्तक है, ये आपका कौन सा था? ये 2 पत्र पढ़े थे, उससे बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। और बड़े बड़े लोगों का पत्र पढ़ो तो ठीक है, लेकिन उनका पत्र पढ़ना जरूर है। तब उनकी अंदर रहकर क्या भावना है। वो सेंट्रल जेल कारावासी है, देखो पढ़ो, और कितना है। मेरे ख्याल से तो बड़ा विद्वान है, साक्षरवाद। पुत्रों में गहराई है बहुत, नहीं बहुत गहराई तो है, बहुत सुंदर पत्र। आपको मुफ्त में दे दे, मुफ्त में दे दे। जैसे आप भगवान है, जैसे आपकी इच्छा करेंगे, हम उसका स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, मुफ्त में देते हैं। अच्छा जाओ लीजिए, जैसे आप मेरा आशीर्वाद। आप पढ़ो, और कहीं आप कितने लोगों को पढ़ाएंगे? जो जेल में तो जेल वाले के सबको पढ़ाया, आप कितने को पढ़ाएंगे? ठीक, कितने लोगों को? 1 2 5 10 100 जो पढ़ सके आगे।